Unacademy. Let's crack it. Yes, Priyanshi Yadav ji. So the board is in front of you. All three respected members is here. Okay. So kindly let us know something about your basic profile. Sir, my name is Priyanshi. I've been born and brought up in Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, and I completed my schooling from Kanpur itself. After that, I went to Banaras Hindu University Law Faculty to pursue my BA LLB honors from there. And ever since I graduated, have been preparing for judicial services examination, and I have given exams of other states as well. But this is my first attempt at UP judiciary. So it was your first attempt for UP judiciary. Earlier, for which state you have appeared? Sir, I have appeared for Rajasthan and Haryana states. Rajasthan, Haryana, and UP is your third state. Yes, sir. Okay. यूपी का जो बाउंड्री है वो कौन कौन से स्टेट से कनेक्ट होता है? Sir, UP touches Delhi. Delhi is the union territory, and it touches Uttarakhand, and it also touches Bihar, and sir, Madhya Pradesh, and that is it, sir. कितने स्टेट्स हुए ये? Sir, 4, I could recall. टोटल 8 स्टेट से यूपी का बाउंड्री कनेक्ट होता है. अच्छा, दिल्ली आपने कहा यूनियन टेरिटरी. दिल्ली यूनियन टेरिटरी है? Yes, sir. Delhi is union territory. तो फिर यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी में क्या अंतर होता है? Sir, Delhi is a union territory, so the union administers it through lieutenant governors, and national capital, since Delhi is also the national capital, so we call it national capital at times. And there are certain national capital regions. आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट का टाइटल पता है जिसमें दिल्ली एज ए पार्टी होती है, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वहां पे क्या लिखा रहता है? Yes, sir. जब सामने NCT of Delhi, NCT of Delhi, NCT of Delhi लिखा रहता है. yes. यूनियन टेरिटरी वहां पे वर्ड यूज नहीं होता है. No, sir. तो ऐसा कुछ हुआ था कि रीनेम करवाया गया दिल्ली को, कुछ ऐसा कोई एक्ट पास हुआ था, ऐसा कोई कानून पास हुआ था दिल्ली के रिगार्ड्स में? Sir, I'm not able to recall any such act, but all I can say is that since it has some exclusive qualities, like Delhi police is controlled by union itself, so it has some peculiar qualities which other union territories might not be having. दिल्ली पुलिस आपका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? यस सर, होम मिनिस्ट्री. पुलिस किसके कंट्रोल में होती है, पहले मुझे ये बताएं. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पुलिस?
Sir, in the states, I believe the police comes within the control of the state government and is regulated by the Home Ministry. होम However, ओके, yes, तो आपके यूपी का होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? sir, I'm not able to recall the minister's name. 5 मिनिस्ट्री के नाम बताएं आप मुझे. Sir, Law Ministry and लॉ मिनिस्ट्री है या and लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है? क्या है इसका एग्जैक्ट नाम? sir, Law and Justice. लॉ एंड जस्टिस And मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है? क्या बोलते हो, किस तरीके से बोला जाता है उसको? sir, Ministry of Law and Justice. ठीक है, और Sir, other than that, there is Home Ministry, Ministry of Home Affairs, and there is Education Ministry, Ministry of Education and Human Development, and third is एजुकेशन और ह्यूमन डेवलप दोनों एक ही में साथ में ही आता है? yes sir. और बताएं. And sir, then sir, I'm not able to recall right now. कोई बात नहीं. संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजन कहाँ पर है? Sir, Article 75 talks about Council of Ministers, and after that it is given that there will be a Council of Ministers to assist President to decide on matters. और काउंसिल जो सलाह देती है प्रेसिडेंट को, Yes, sir. तो प्रेसिडेंट क्या बाउंड है Yes. उसकी लिए? Yes, sir. President is bound by the advice of the Council of Ministers. तब तो फिर इसको एडवाइस नहीं कहना चाहिए, तब तो उसको डायरेक्शन कहना चाहिए हमें. Sir, since President is actually a head of the state, although he may be considered a nominal head, but still, since it is a very dignified post, so it is rather preferred to call it an advice. Though it is of binding nature, but it is अच्छा, preferable. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर ऐसी कोई प्रोविजन है जहां पे एडवाइस दी जा रही है बट सामने वाला मानने के लिए बाउंड नहीं है? So there are certain discretionary provisions where President is not actually allowed to disregard the advice, but there are certain provisions where President may take decisions on his own. For example, whenever a government is formed and no party is necessarily in majority, then Oh. President may decide. लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन. मेरा सवाल ये नहीं है कि मिनिस्ट्री की बात का प्रेसिडेंट नहीं मानेगा. मेरा सवाल ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के नाम से कोई प्रोविजन है जिसमें जो एडवाइस दी जा रही है उसको मानने के लिए रिसीवर बाउंड नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का कहीं पे एडवाइजरी? Yes, sir. Supreme Court. Yes, sir. Article 143 provides for the advisory jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है. Where President will seek advice, but President is not bound. प्रेसिडेंट जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजता है तो कम से कम कितने जजेस की बेंच उसको सुनेगी? Sir, it will be a 5-judge bench. मिनिमम या मैक्सिमम 5? Sir, minimum. और एक और जगह कहां पर है जहां पे मिनिमम 5 मेंबर्स होने ही चाहिए, 5 जजेस होने ही चाहिए? Sir, in collegium right now there are 5 judges on the Supreme Court. Collegium is basically not a bench. Yes, sir. मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट के रेफरेंस को डिस्पोज करने के लिए 5 जजेस की बेंच बैठती है, वैसा Yes, sir. और भी कोई मुद्दा है क्या जहां पर 5 जजेस मिनिमम बैठने ही चाहिए? Sir, I cannot recall right now, but I believe that when there is a matter, a constitutional matter, then if CJI wants, then he can form a constitutional bench. For संवैधानिक बेंच. example, there have yes, sir. Yes, sir. अपने बारे में Then, आप जानते हो? अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आप अपने बारे में जानते हो क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? Sir, it's been a while that I think this is a process, sir. Like I've been
I've been noticing certain changes in my personality ever since I have started to prepare for judicial services examinations. It brought more maturity in me. So I think it's a process. I know some things, but I believe that as and when time passes by, I will be able to know more about myself. And But I think that I have certain. according Yes, to sir. when that time will come? I cannot certainly say. I believe it's a ever evolving process. The things that you know about yourself right now may not necessarily be true for all times. But I know that I have certain qualities that I have discovered in past 3-4 years, which I didn't know of. ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, लॉ ग्रेजुएशन? सर मैंने लॉ फैकल्टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। जी जी। आपने कानपुर से क्यों नहीं ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन की? कानपुर में भी तो लॉ ग्रेजुएट मतलब वो कॉलेजेज हैं। जी सर, कॉलेजेस हैं। जी सर। हाँ, ऐसा क्यों? वहाँ कोई खास बात थी? सर ऐसा नहीं है, जब मैंने ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। मैंने क्लैट में भी अपीयर हुई थी। उसी साल सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने BA LLB ऑनर्स का कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, तो सर मैंने वहां भी अप्लाई किया। फिर सिंस आई गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर एंड वाराणसी काइंड ऑफ fascinated me as a place, so I wanted to move out and explore things as well. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन तो किया नहीं है लास्ट से? नो सर, नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया सर। जी जी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी सर, यूपी जुडिशरी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका इंटरेस्ट यूपी जुडिशरी में कम है क्या? क्यों? आपकी राजस्थान भी भर्ती हैं, हरियाणा भी भर्ती हैं, दिल्ली भी भर्ती हैं, क्या सर अट्रैक्शन यूपी की तरफ कम है कंपेरेटिवली दिल्ली के या हरियाणा या MP या राजस्थान? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लॉ जब मैं कर रही थी तो मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि आई वांट टू बी अ जज, so then I started to prepare. So as such I don't discriminate between states because all states are in India, and I think my dream of becoming a judge is more important to me, so I don't discriminate between the states. But UP is my home state, so I love my state as well. नहीं, कहा जाता है कि यूपी की में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बेटर है कंपेरेटिवली और स्टेट के, जानकारी है आपको? जी सर, मैंने इस बारे में सुना है। मेरे कुछ मित्रों ने भी मुझे इस बारे में बताया। लेकिन सर मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय के साथ और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स से, जैसे रिसेंटली CJI ने भी ये चीज पॉइंट आउट करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटरमेंट होना चाहिए, तो मुझे लगता है समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। और फिर सर जब आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो यू हैव टू डील विद इट no matter what comes your way. जी जी। ये हिंदू मैरिज लॉ आपने पढ़ा होगा? जी सर, जी। मैरिज की कंडीशंस बता पाएंगे क्या है? हिंदू मैरिज कंडीशंस क्या क्या है, क्या डिफाइन की गई? जी सर, जी सर, जी सर। सर सेक्शन 5 of Hindu Marriage Act defines the conditions which are required for a marriage to be solemnized. सर पहली कंडीशन ये है कि जो both the spouses should be Hindus, एंड सेकेंड इज सर कि दोनों ही इस मेंटल स्टेट में होने चाहिए कि वो एक वैलिड कंसेंट दे पाए, मतलब कि वो मेंटली सेन होने चाहिए और कोई भी ऐसा डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनकी कंसेंट इनवैलिडेट हो जाए। और तीसरी कंडीशन है सर एज से रिलेटेड है, जिसमें कि फीमेल शुड बी ऑफ 18 years old and male should be 21 years old. And fourth condition is sir about subpenda relationships, and fifth condition is about prohibited relationships. हिंदू फैमिली में सपिंडा का क्या महत्व है? सपिंडा रिलेशनशिप जो आपने बताया अभी कि सपिंडा होना चाहिए,
इसका जी क्या सर। महत्व है? जैसे सर सपेंडा, और रिलीजन में सपेंडा जैसी कोई बात तो है नहीं, ऐसा क्या है, जी क्यों सर। सपेंडा ज्यादा महत्व दिया गया है हिंदू फैमिली में, हिंदू मैरिज में? सर अगर हिंदू लॉज की हिस्ट्री में जाकर देखें तो जी हिंदू धर्म में पिंड दान का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो कोपार्सनरी लॉज जो है, पहले अभी अमेंडमेंट से पहले, 2006 अमेंडमेंट से पहले, तो कोपार्सनरी लॉज भी इस पिंड दान से बहुत रिलेटेड। तो इस वजह से जो भी सपिंड लोग होते हैं, तो वो इतने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं कि उनसे रिलेटेड प्रोहिबिशन है शादी करने के लिए। अच्छा अच्छा। जुडिशियल सेपरेशन किस सेक्शन में बताया गया है हिंदू लॉ में? सर सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट्स आप कहते हैं में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या अंतर है? Sir, Section 9 talks about restitution of conjugal rights, whereas Section 10 talks about judicial separation. जी Sir, restitution of conjugal rights में ये होता है कि when spouse withdraws from the society of the other spouse without any valid reason, then the spouse can approach the court with the petition for restitution of conjugal rights. Then the courts may pass a decree to reinforce the marital obligations. और सर जुडिशियल सेपरेशन में सर it's a kind of mechanism to give some time to the couple so that they can resolve their dispute. It is judicial separation is allowed by the court whenever whenever the couple approaches the court with a dispute, and despite of awarding a decree of divorce, court gives some time so that maybe the dispute can be resolved between the couple. आपने प्रेसिडेंसी टाउन सुना होगा, लीगल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे जी सर। इंडिपेंडेंट। तो प्रेसिडेंसी टाउन में कौन कौन से टाउन्स थे? सर मद्रास जी, बॉम्बे जी, एंड बंगाल। बंगाल के कलकत्ता? जी सर, कोलकाता। जी। बंगाल के कहते हैं चीफ जस्टिस का नाम बता पाए क्या? सर राइट नाउ बम्बई के चीफ जस्टिस? हेलो सर, not able to recall right now. I'm sorry sir. यूपी के चीफ जस्टिस? Yes sir. Honorable Justice Pratinkar Divakar is the Chief Justice of Allahabad High Court. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. थैंक प्रियांशी, Yes ma'am. Good evening ma'am. गुड इवनिंग प्रियांशी। आपने सपिंडा का कॉन्सेप्ट बताया था, Yes ma'am. तो उसमें कोई जनरेशन दिया हुआ है हमारे एक्ट में? Yes कितनी ma'am. generation? From मदर साइड से और फादर साइड से डिफरेंट प्रोविजंस है। मदर साइड से अप टू 3rd जनरेशन एंड फादर साइड से अप टू 5th जनरेशन। करेक्ट। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का? यस मैम। उसको एक्सप्लेन कीजिए। Now, option of puberty is a concept in the Muslim law. Whenever it's kind of very exclusive to Muslim law. It impacts the concept of marriage immensely, and it's for example, whenever Muslim law allows that prior of obtaining the puberty, the child can be given in marriage with the consent of the guardian. Okay. So that is one aspect, and the 15 years is the age which is considered as the age of puberty.
So after attaining the age of puberty, if the person concerned is not happy with the marriage, then he or she can part ways, and that is it. Okay. So you said that this concept is exclusive to Muslim law, right? Yes, yes. Um, is there any similar provision in Hindu law as well? Ma'am, actually, one such ground is given as a ground of filing for divorce. When a woman below the age of 18 years is married off, and if she then wants to avoid the marriage, then Okay. she can approach the court. But but there is difference in the age, like 18 years in Hindu law and it is 15 years in Muslim law. Okay. What do you mean by curative petition? Curative petition. Ma'am, the concept of curative petition was introduced in the landmark case of Ashok Khurra and Rupa Ashok Khurra, and it was introduced by the Supreme Court to be used in certain cases, so that the justice of ends of justice can be achieved. But there should be no justice should not be defeated under no circumstance. With that idea, the curative petition concept was introduced. Okay. One last question. So, आप मान लीजिए आप सिविल जज हैं, आप ma'am. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, जी ठीक है, ma'am. फर्स्ट क्लास, आपके पास बेल के लिए एप्लीकेशन आती है 438 के अंडर, तो आप कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे बिफोर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग बेल? As far as I can recall is that I'm not able to deal with anticipatory bail applications under 438. So, what would be your next step? So, I think I don't know, ma'am, if I can use the word committal, but I would tell the party to approach the Court of Sessions with the Or the High application. Court? Yes, or to the High Court. Okay. Okay, Priyanshi ji, we have done with your mock, and now it's time for feedback. Sir, first of all, I want to thank the panel. You are doing I'm so grateful, sir. You are doing it, and at such short notice, you are doing it. Sir, we will be forever grateful. करना ही पड़ेगा, and especially thanks to Dharmraj sir and Ratnapriya ma'am as well, as because they are Yes, also sir. there, to assist and guide you. Sir, I'm thanking the whole panel. They were very grateful, sir. लेकिन प्रियांशी जी, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका इंटरव्यू कब है? मेन इंटरव्यू Sir, 21st of August. 21st को, तो you have at least 13 to 14 days, right? Yes, sir. Yes, sir. इन 13 to 14 days के अंदर यहाँ पर आपको अपनी लाइफ का एक बेस्ट शॉट लगाना है. ओके Yes, अब इस बेस्ट शॉट को लगाने के लिए पैनिक नहीं होना है, हमें खुद Yes, को sir. एक्टिव करना है. किस तरह से, वो आप सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ जानकारी इकट्ठी करो, जैसे ज्योग्राफिकल जानकारी यूपी के बारे में. यूपी के बारे में हमको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना. यूपी का पॉपुलेशन कहाँ है, आपका जो होम टाउन है वहां का क्या पॉपुलेशन हो सकता है वगैरह, क्या क्या कनेक्टिविटी है, आपके डीएम कौन है, सीजे साहब कौन है हमारे, है ना. ये थोड़ा सा हमें जानकारी रखना है. तो यूपी के एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन से थे, यहाँ पर ये मामला मुझे कमजोर लगा, जी, क्योंकि सर. आपका थोड़ा जी, बेसिक सर. नॉलेज यहाँ पे मुझे वीक लगा, है ना. जी, sir. 8 स्टेट 1 एनसीटी इज कनेक्टेड. ये भारत का इकलौता राज्य Yes, इतने sir. सारी बाउंड्रीज को लेकर बैठा है. जी, सर. जी, थोड़ा कनेक्शन करना चाहिए. यूटी और एनसीटी के बीच में डिफरेंस ये है कि हमने दिल्ली के लिए अलग से नाम उसको रिकॉग्नाइज कर रखा, डेजिग्नेशन दे रखा है एनसीटी का, और अलग से लॉ बना इसके लिए. ओके Okay, sir. और हमने दिल्ली को एनसीटी के रूप में क्या किया है, रिकॉग्नाइज है जो किया है. तो इसलिए आप उस दिल्ली को एनसीटी नहीं कह सकते. Okay. ये तो ठीक उसी तरीके से है कि फिर सिविल जज बनने के बाद भी हम आपको वकील साहब भी कहें, है ना. जी, sir. सेम चीज यहाँ पे लागू है जो होती है.
दूसरा ये कि ये जो मिनिस्ट्री वाला जो मामला था, जैसे आप क्या कई बार आपको पता होता है लेकिन थोड़ा सा बोर्ड आपको हल्का सा वापिस एकदम यूं ट्विस्ट करता है और आप घूम जाते हो। दिल्ली पुलिस, आप बिल्कुल सही थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, दैट्स ट्रू, आपने पहले बताया भी, बट थोड़ा सा मैंने ज्यादा वापस पूछा तो वापस उससे पलट गए। भरोसा रखो, आपके नॉलेज नहीं आपको यहाँ तक पहुंचाया और वहीं आपको आगे लेकर जाएगा, उस पर भरोसा रखिए, इट विल हेल्पफुल टू यू। और एक कमजोरी जो मुझे बहुत ज्यादा खली वो है आपका थोड़ा सा वीक रिकॉलिंग। कई बार कुछ जगहों पे कुछ प्रोविजन पे रिकॉल करने का जो आपका थोड़ा सा कैपेसिटी है उस पर अगर आप 10-12 दिन अच्छे से वर्कआउट कर लेना तो प्रियांशी जी, हो सकता है आज से 2 महीने बाद हम प्रियांशी जी से नहीं, हम सिविल जज प्रियांशी जी से बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ पॉइंट जैसे मैंने आपसे जनरल पूछे थे कि डू यू नो योरसेल्फ। देखो एक मेरी बात याद रखना, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपका जो वर्ड्स क्लैरिटी है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि मतलब आपका वर्ड्स बोले और हमको सुनाई ना दे, हमको समझ में नहीं आए। सेंटेंस की फ्लुएंसी जो है आपकी वो बहुत अच्छी है और आपका कॉन्फिडेंट जो है वो आपकी आंखों के अंदर हमें दिखता है। लेकिन एक्सेस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देने से आप किसी चीज को क्या कर सकते हो, एग्जैगरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ड्रैग हो जाता है। एग्जैक्टली। आपने उस सवाल का सिंपल सा मेरा सवाल था कि भाई खुद को जानते हो क्या आप, तो यहाँ पर एटलीस्ट हमें ऐसा आंसर देना है जैसे एक जज के एंगल से आंसर दो। जज को क्या पता होना चाहिए कि वो जजमेंट कब देता है, किस मामले में देता है, कैसे देता है। तो आपके पास वो चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग वाला मामला। तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हो, मतलब आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं इसका आंसर शायद ये देता कि सर इन माय हम्बल व्यू, इन करंट सिनेरियो, करंट डायनामिक सिनेरियो, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द सर्कमस्टेंसेस एंड आई एम नॉट द एक्सेप्शन ऑफ इट। मतलब परिस्थितियां बदल रही है तो मैं भी कई बार खुद को बदलती रहती हूँ, बट ऑन एन एवरेज पॉइंट, क्या वर्ड इस्तेमाल किया, ऑन एन एवरेज पॉइंट। अब ये शब्द बोलती है आप सेफर पॉइंट पे हो, ना तो आप क्या तो क्लेम कर रहे हो ना आप डिस्क्लेम कर रहे हो। ऑन एन एवरेज पॉइंट आई कैन से दैट आई एम नोन टू माय विजन, माय इंटेलेक्चुअल वर्क एंड माय जजमेंटल कैपेसिटी। तो इससे क्या होता है, इससे आपका आंसर आया भी और वो आंसर आया जो जुडिशियल ऑरा से मैच करता है। देखो कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपसे इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप बोर्ड को इंप्रेस करने का एक एफर्ट कर सकें, है ना। और हमें जजमेंटल कैपेसिटी तो है ही, दैट्स व्हाई यू हैव चूजन जुडिशरी। जैसे सर ने आपसे सवाल पूछा था व्हाई द यूपी, वहां पर आपका एक कैजुअल आंसर आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप बोर्ड से बात कर रहे हो या टॉकिंग टू योर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे शब्द नहीं। हमें थोड़ा सा डिग्निटी को, सर आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई हियर, क्या बोलोगे सर, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई हियर वन थिंग, स्माइलिंग फेस के साथ में। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप एटीट्यूड के अंदर बता रहे हो। Sir, with your kind permission, I would like to clarify here that Uttar Pradesh is no doubt my hometown, and personally, I do not discriminate between the judicial services of different states. But sir, being a human being, somewhere it is one easiness of my life that if I got selected in the UP judiciary, I can perform my functioning in very better way. भाई अगर आप यूपी में रहोगे तो आप यूपी की कल्चर के बारे में जानते हो, तो ये बात बोलो ना कि आप यूपी के कल्चर के बारे में जानते हो, तो कोई भी डिस्प्यूट वगैरह आता है तो आप उसको और अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, डील जो कर पाओगे। ये सवाल आपके लिए टर्निंग पॉइंट था, आप इंटरव्यू को गाइड कर सकते थे, ड्राइव कर सकते थे, है ना। इस पे थोड़ा सा वर्कआउट जो करेंगे। बाकी आपका नॉलेज जैसे क्योरिटी पिटिशन, अशोक हुर्रा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बताएंगे, बट यू मेंशन अशोक हुर्रा वर्सेस केस वगैरह क्योरिटी पिटिशन पे। हिंदू लॉ, वेरी गुड कमांड। हिंदू लॉ, मॉमनल लॉ पे सर ने, मैम ने आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे, वहां पर आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, दैट्स अ गुड थिंग ऑफ यू। बट थोड़ा सा इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। देखो हमारे पास अच्छी पर्सनैलिटी है और हमारे पास ही अच्छी पर्सनैलिटी है, दोनों में अंतर हो जाता है ना। सो अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करें और एक हम्बलनेस और अच्छे से लाएं। बाकी एल्स यू आर परफेक्टली जुडिशरी मटेरियल। इट्स माय वर्ड्स टू यू, यू आर अ जुडिशरी मटेरियल। ओके सर, anything sir or ma'am, anything else you want to suggest? प्रियांशी, आप बस अपना खुद का इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। आपके जो आंसर फ्रेमिंग है अच्छी है, उसे और बेहतर करने के लिए आप खुद से क्वेश्चन पूछिए और खुद के इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। ये चीज मुझे बहुत हेल्प की थी तो आपको भी जरूर हेल्प करेगी। और इस इंटरव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा नाइट तक। एक बार, दो बार, तीन बार देखना है। एक क्लास क्लास पूरी करो ताकि पूरा एकदम वापस तो चीजें रिवाइज हो जाए कम समय के अंदर, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपके लिए प्रियांशी जी, आपके लिए रिवीजन मस्ट है। आप वेरी कॉन्फिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कमांड भी आपको ला पर है,
लेकिन थोड़ा सा रिवीजन आपका वीक है, रिवीजन आप थोड़ा सा जरूरी है आपको। विद इन 10 डेज 17 डेज जो भी बचे रहे आपके पास, इसमें आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, अपने को रिवाइज कर लीजिए, ठीक जी है? सर, जी ओके, सर। And I'm pretty Sir, sure I'll that you make will sure. do it. Yeah. Okay, thank you, sir. Okay. Wish you all the best. Thank you so much.